اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھیے صرف سادہ میں ابھی تک پہلی بات تو مین بحث کس بات کے بارے میں چل رہی ہے؟ سبھی کا انچا فاطمہ سکینہ سیدہ غبرانی میم قصہ زہرا۔ اصل بحث ہماری کس بارے میں چل رہی ہے؟ فعل میں بھی کون سا فعل؟ ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد کی گفتگو چل رہی تھی۔ فعل ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہے کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی زیادہ۔ میں نے فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ مجرد مزید ناپنے کا جو وہ ہے وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا جی۔ تو ہم نے فعل ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ سیکھا، مضارع معلوم بنانے کا قاعدہ سیکھا اور امر معلوم بنانے کا قاعدہ۔ اب جو ہے تینوں کا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول۔ فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ فعل معلوم ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ جی، فعل معلوم ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعل کون سا فعل ہے؟ فعل معلوم ہے۔ یہ فعل معلوم ہے کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے۔ فعل معلوم، تو ہم نے فعل معلوم پڑھا نصرہ زید یا ینصر زید، لینصر زید۔ ٹھیک ہے، نصرہ زید، زید نے مدد کی خالد کی۔ ینصر زید خالدن، زید خالد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ لینصر زید خالدن، زید کو چاہیے کہ وہ خالد کی مدد کرے۔ تو تینوں معلوم ہی تھے نا، کیونکہ فاعل کلام میں ذکر تھا۔ آپ کہہ دیجئے نصرہ یا ینصر یا لینصر، لینصر۔ ٹھیک ہے، تینوں کا یہ اگر تینوں سے جملہ بنا دیں، نصر زید خالدن، ینصر زید خالدن، لینصر زید خالدن، تو یہ سب فعل معلوم ہے۔ یہ ماضی معلوم، یہ مضارع معلوم، یہ امر معلوم۔ کیوں معلوم ہے یہ؟ کیونکہ ان کا فاعل کلام میں ذکر ہے، فاعل کلام میں ذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں فعل تھا فعل مجہول۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل جس کے فاعل کلام میں ذکر ہے۔ ہاں، دیکھیے فاعل یہ تھا نا، اسے حذف کر دیجئے۔ اور اب دیکھیے نوسرا بھی اسی جگہ آ جائے گا نا مفعول، تو اس کا اعراب لے لے گا، ہو جائے گا خالدون۔ نوسرا خالدون، ینصر خالدون، لے ینصر خالدون۔ نصر خالدون، ینصر خالدون، لے ینصر خالدون۔ مدد کیا گیا خالد، خالد کی مدد کی گئی۔ خالد کی مدد کی جاتی ہے، کی جائے گی۔ چاہیے کہ خالد کی مدد کی جائے، چاہیے کہ خالد کی مدد کون کرنے والا ہے؟ وہ غائب ہے، یعنی وہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہ والے فعل ہے فعل مجہول۔ دیکھیے فعل معلوم اور فعل مجہول میں ایک فرق تو یہ ہے کہ فاعل ہٹ کے مفعول اس کی جگہ کے اس کا اعراب لے لیا۔ خود صیغے کی بناوٹ میں بھی فرق ہے، وہاں پہ نصرہ تھا، یہ نوسرا ہے۔ وہاں ینصرو تھا، یہاں ینصرو ہے۔ ینصرو تھا، یہاں ینصرو ہے۔ وہاں لے ینصر تھا، لے ینصر ہے یہاں پر۔ سمجھ میں آیا؟ بس یہ بنانے کا طریقہ آپ سکھائیں گے کہ کیسے بنا، کیسے بنا۔ فی الحال میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، لکھنے کی کاپی پہ لکھنے والا بعد میں لکھواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سب ماضی ہیں، یہ سب آپ کہیں گے آپ نے تو ابھی 3 ہی حرف پڑھے ہیں، کیونکہ ہم ثلاثی مجرد پڑھا ہے نا۔ ہلو، اس لیے ہمیں بس یہ پتا ہے ابھی یہ ثلاثی 3 حرف اصلی ہیں، یہ حمزہ زیادہ ہے، ثلاثی مزید ہے۔ یہ نون سواد اصلی ہیں، الف سین تے زیادہ ہے، ثلاثی مزید ہیں۔
یہ چاروں حرف ہیں، دال ہے ریجے، چاروں اصلی ہیں، یہ رباعی مجرد ہے تو یہ ماضی ہی ہے، یہ سب ماضی. میں نے مثالیں اتنی زیادہ کیوں دی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ دیکھیے، فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ دیکھیے، اسی پہ دیکھیے. فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے. ما قبل آخر کو ما قبل آخر یعنی عین الفعل نہیں عین الفعل مت کہیے. لاسٹ والے سے پہلے والا ما قبل آخر، آخر سے پہلے والا. ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیں گے. یہاں پر آخر سے پہلے والا کیا ہے؟ عین الفعل ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں پتا ہے کیوں عین الفعل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی عین الفعل ہے ما قبل آخر، یہاں بھی، لیکن یہاں تھوڑی عین الفعل ہے ما قبل آخر. فاعل عین الفعل لام الفعل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ عین الفعل مت کہنا کہ عین الفعل کو کسرہ دے دیں گے، نہیں. ابھی تک آپ نے ثلاثی مجرد کا جو مجہول بنانے کا وہ جو طریقہ پڑھا تھا کہ فاعل فعل کو ضمہ دے دیں گے، عین الفعل کو کسرہ دے دیں گے، اور لام الفعل ہوتا ہی فتح ہے، تو وہ ثلاثی مجرد سے مخصوص رہ جاتا وہ قاعدہ. وہ قاعدہ آپ نے میزان اگر ایک کتاب پڑھی ہو یا آپ نے عربی کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں آپ کو قاعدہ یہ سکھایا گیا ہوگا کہ ماضی فعلہ کے وزن پہ آتا ہے. کیا بتایا گیا تھا؟ فعلہ. طریقہ کیا ہے؟ فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین الفعل کو کسرہ دیں گے، لام الفعل مبنی پر فتح ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے، یہ لہذا فعلہ ہو گیا. تو اگر ہم یہ والا قاعدہ میں آپ کو بتا دوں، یہ والا کہ فاعل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ اور لام الفعل مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک رہے گا. وہ یہاں پہ یہ بات ٹھیک نہیں رہے گی. کیا ہے؟ فاعل فعل ذال ہے، یہاں عین الفعل یہ ہے، تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ ازوہبا. اس لیے یہ قاعدہ اگر ہم یہ والا قاعدہ لکھوا دوں میں آپ کو، یہ والا قاعدہ لکھوا دوں فاعل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ، لام الفعل تو ہوتا ہی مبنی پر فتح ہے. اگر میں یہ قاعدہ لکھوا دوں تو یہ قاعدہ ثلاثی مجرد میں تو چالو رہے گا لیکن اوروں کا اوپر صادق نہیں آئے گا. ایک ایسا قاعدہ بتایا جائے کہ جو ہر جگہ صادق آ جائے، جو ہر جگہ صادق آ جائے. والا عمومی قاعدہ، عمومی. اگر میں یہ والا قاعدہ بتا دیتا تو یہاں تک تو ٹھیک تھا، آپ نوسیرا کر دیجئے فعلہ کے وزن پہ، جتنے بھی ثلاثی مجرد ہیں ان کو بنانے کا طریقہ پتہ لگ جاتا مجہول. لیکن ان کو کیسے بناتے؟ پھر ایک عمومی قاعدہ یہاں پہ بیان کریں گے کہ جو آپ کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کے لیے الگ قاعدہ سیکھیں، اس کے لیے الگ قاعدہ سیکھیں، نہیں. ایک ہی قاعدہ بتا دے رہے ہیں. ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجئے. ما قبل آخر پہ اگر کسرہ نہ ہو، دیکھیے یہاں ما قبل آخر پہ کسرہ نہیں ہے، یہاں ما قبل آخر پہ کسرہ نہیں ہے، لیکن یہاں ما قبل آخر پہ کسرہ نہیں ہے. اور بہت سی مثالیں ایسی آ جاتی ہیں آلریڈی وہاں ما قبل آخر پہ کسرہ ہے. یہ کہہ رہا ہے اگر ما قبل آخر پہ کسرہ نہ ہو تو کسرہ کر دینا. ما قبل آخر پہ کسرہ کر دینا ہے. یہاں پہ ما قبل آخر سواد ہے، یہاں پہ ما قبل آخر ہے، یہاں پر ما قبل آخر سواد ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ما قبل آخر رے. پہلا اسٹیپ، دو اسٹیپ ہیں. پہلا ما قبل آخر کو کسرہ کر دیجئے. اب اور دیکھیے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ کرنا ہے ما قبل آخر کو کسرہ دینے کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں، جتنے بھی حرف کے اوپر حرکت ہے، جتنے بھی حرف کے اوپر حرکت ہے، یہاں پر اس سے پہلے ایک ہی حرف ہے جس پہ حرکت ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس سے پہلے ایک ہی حرف ہے جس پہ حرکت ہے، یہاں بھی اس سے پہلے دو حرف ہیں جس پہ حرکت ہے، ایک تے اور ایک حمزہ. یہاں پر اس سے پہلے ایک ہی حرف ہے جس پہ حرکت ہے. قاعدہ عمومی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ما قبل آخر کو کسرہ دیجئے اور اس سے پہلے جتنے بھی حرف کے اوپر حرکتیں ہیں ان حرکتوں کو ضمے سے بدل دیجئے. نوسیرا، اذہبا، استنصرا، دوہریجا. بن گیا مجہول نہیں بن گیا؟ کتنا آسان ہے. اور اگر میں ایسے کہہ دیتا فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین الفعل کو کسرہ دیں گے، لام الفعل فتح ہوتا ہی ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک تھا. یہاں کیسے کرتے آپ؟ فاعل فعل تو یہاں ذال ہے، فاعل فعل تو یہاں نون ہے، فاعل فعل تو یہاں دال ہے، تو نہیں بن پاتا. جی بھائی فاعل فعل کو فتح دے گا، عین الفعل یہ تھا نا تو اس کو کسرہ دیتے، تو پھر ان کا کیا کرتے؟ تو وہ قاعدہ عمومی نہیں تھا، خصوصی تھا، وہ ثلاثی مجرد ہی میں چالو رہتا بس وہ قاعدہ. باقی کا کیا کرتے؟ ثلاثی مزید بچ رہا تھا، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، ان کا کیا کرتے؟
मतलब ये रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद का भी देख लीजिए। तदाहरजा, तदाहरजा, मा क़ब्ल आखिर रे है, कसरा दे दीजिए। उससे पहले मुतहर्रिक हर्फ दो हैं, दाल और ते, ज़म्मा दे दीजिए। तुदुहरजा। तो अब ये वाला कायदा जो है ये उमूमी हो गया, उमूमी हो गया, यानी सब जगह चालू है ये कायदा, हर जगह यही कायदा। क्या है? दो स्टेप, मा क़ब्ल आखिर को कसरा, अगर कसरा नहीं है, अगर है, ये अगर है तो है, कोई बात नहीं है, मा क़ब्ल आखिर को कसरा देना है, और उससे पहले जितने भी हर्फ के ऊपर हरकतें हैं उन सबको ज़म्मा दे देना है। लामुल फ़िल पे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि माजी होता ही मबनी बर फतह है, आखिर में पता ही, ठीक है। दो कदम, मा क़ब्ल आखिर को कसरा, उससे पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं, चाहे एक हर्फ हो चाहे दो हर्फ हो, मुतहर्रिक या एक हो या दो या उससे ज्यादा, मकसद यह है कि उससे पहले जितने मुतहर्रिक हरकत जिन हर्फ के ऊपर है, साकिन वालों को मत कर देना। कभी आप जान को भी ज़म्मा दे दो, नून को भी ज़म्मा दे दो, हे को भी ज़म्मा दे दो, नहीं, जिन जिन हर्फ पे ऊपर हरकत है उस हर्फ को ज़म्मा देना है। कायदा समझ में आया मजहूल बनाने का? जी आगा साहब। जी हाँ। हाँ, अब हम, क्योंकि अभी सुलासी मुजर्रद की बात चल रही थी, सुलासी मुजर्रद पे आ जाते हैं। और मैंने ये कायदा उमूमी है, ये समझाने के लिए इतनी मिसालें दी थी, वरना तो मैं आपसे कह देता फेल माजी मजहूल सुलासी मुजर्रद का बनाने का फायदा यह है कि वो फ़ोइला के वजन पे आता है, यानी फ़ाउल फ़ेल को ज़म्मा, ऐनुल फ़ेल को कसरा, लामुल फ़ेल पे फतह होता है, तो फ़ोइला के वजन पे आता है। तो फिर क्या होता, यहाँ तक तो ठीक था, बाद में तो यहाँ प्रॉब्लम होती, इसलिए यहाँ पे उमूमी कायदा सीख लीजिए। माजी मजहूल बनाने का कायदा यह है कि मा क़ब्ल आखिर हर्फ को कसरा दे दीजिए, और उससे पहले जितने हर्फ के ऊपर हरकत है उसको ज़म्मा दे दीजिए, उसे ज़म्मा वक्त से बदल दीजिए। अब गर्दान कीजिए, गर्दान वही 14 सीगे हैं, वही तरीका, वहीं पे पोशीदा, वहीं पे ज़ाहिर ज़मीर, सेम टू सेम है। माजी की गर्दान देखिए, नोसेरा, बोलिए बोलिए, नोसेरत, 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 बता मुस्लिम नोसेरना, नोसेरना, मुस्लिम मुस्लिम नोसिरता, नोसेरतुम, नोसेरतुम, नोसिरतुम, मुस्लिम मुस्लिम नोसेरते, नोसेरतुम, नोसेरतुम, नोसिरतुन्ना, ठीक है, नोसेरतो, नोसिरतो, नोसिरना। नोसेरतो, नोसेरना। मुस्लिम। बताइए सेम टू सेम वही है, मालूम जैसी या नहीं? जी जी हाँ वैसे। देखिए पहले में हुआ, चौथे में है आप, बाकी इसमें अलीफ दिखाई दे रहा है, वाव दिखाई दे रहा है, अलीफ दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ता, तुमा, तुम, ते, तुमा, तुन्ना, तो, ना, वही सेम टू सेम है, कोई फर्क? जी नहीं। अच्छा चलिए एक फर्क है, बताइए क्या फर्क है, कौन अगर बता सके? उसमें और इसमें एक फर्क है, कोई अगर बता दे, सबसे अहम फर्क है, कोई है? अगर यहाँ पे ज़मीर नाइब फाइल है, आसान, क्योंकि वो फेल मालूम था, इसलिए वहां पे कहा था नोसेरा, नसरा फाइल है या नसरा फेल है या फाइल, नसरा फेल, अलिफ फाइल, फाइल की जमीर, नसरू, नसरा फेल, वाव फाइल, ये फाइल की जमीरें थी वहां, लेकिन इन्हें फाइल की जमीरें थोड़ी है, नाइब फाइल की जमीरें हैं, क्योंकि फेल मजहूल है, नोसेरा हेया जो है इसे आप फाइल नहीं कहेंगे, नाइब फाइल है, क्योंकि ये मफूल था, अब फाइल बना है फाइल की जगह। ये सबसे अहम तो यही फर्क है ना, मालूम और मजहूल में यही तो सबसे अहम फर्क है, वरना बेकार है। तो यही फर्क है क्या, कि फेल माजी मालूम में जो जमीरें हैं वो फाइल की हैं, और मजहूल में जो जमीरें हैं वो नाइब फाइल नाम है उनका, जो कि मफूल थी अब फाइल बन गई है। समझ में आई बात? जी। वहां पे तर्जुमा क्या था, नसरा, मैंने गलती की, किसी ने दिखाई नहीं दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया, मैंने क्या गलती की आप में से भी? ये लिखा है आप पहले सोफे में हुआ है। आप देखिए वहां पे क्या था, नसरा फेल हुआ फाइल था, क्या माना थे, उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने, तो मदद करने वाला एक मर्द था ना, मालूम था कौन है मदद करने वाला, एक मर्द, लेकिन यहाँ पे कहेगा उस एक मर्द की मदद की गई, उस एक मर्द की मदद की गई, किसने की, वो फाइल कौन है वो नहीं मालूम है। नोसेरा, उन दो मर्दों की मदद की गई, वहां पे था उन दोनों मर्दों ने मदद की, यहाँ उन दो मर्दों की मदद की गई,
उन सब मर्दों की मदद की गई, उस एक औरत की मदद की गई, उन दो औरतों की मदद की गई, उन सब औरतों की मदद की गई, तुझे एक मर्द की मदद की गई, तुम दो मर्दों की, तुम सब मर्दों की मदद की गई, तुझे एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतों की मदद की गई, मेरी मदद की गई, हमारी मदद की गई। ठीक है, मदद की गई है ना, किसने की है वो जिक्र नहीं है। समझ गए माजी मजहूल? मिटा दूं? आप जरा लिख लीजिए इसे। पहले देखिए अभी तक जो हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? सुलासी मुजर्रद का फेले माजी मालूम बनाने का तरीका, सुलासी मुजर्रद का मुजारे बनाने का तरीका है, यही पढ़ा था। सुलासी मुजर्रद का अम्र बनाने का तरीका, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सुलासी मुजर्रद का मजहूल बनाने का तरीका, क्योंकि अगर सुलासी मुजर्रद वाला बताएंगे तो बाकी का क्या, इसलिए यहाँ पे उम्मी लिखवा देते हैं। आप सीधा कहिए माजी मजहूल बनाने का तरीका, माजी मजहूल फेले, लिखिए फेले माजी मजहूल बनाने का तरीका क्या है? मा कब्ले आखिर, मा कब्ले आखिर को अगर कसरा नहीं है तो कसरा देंगे, कसरा देंगे, और उस से पहले जितने भी हुरूफ पर हरकत है, साकिन नहीं, हरकत है, उसको ज़म्मे से बदल देंगे। साकिन वाले को नहीं छेड़ना है, समझ में आ रही है बात? साकिन वाले हुरूफ को नहीं छेड़ना है, अल्लामुल फेल का तो जिक्र ही नहीं है, उसे वैसे भी नहीं छेड़ना है। सिर्फ दो काम करने हैं, मा कब्ल आखिर को छेड़ना है, उसकी हरकत को कसरे से बदलना है, और उससे पहले जितने हर्फ पे हरकत है उनको हरकत को ज़म्मे से बदलना है। साकिन से कोई मतलब नहीं है। मिसाल तो हो जाएगा नसरा से मा कब्ल आखिर, देखिए स्वाद को कसरा, उससे पहले ही मुतारिक था, उसे ज़म्मा कर दिया, नौसेरा। या मसलन इस राजा से हो जाएगा, मा कब्ल आखिर क्या है? रे है ना, कसरा दे दीजिए, और उससे पहले मुतारिक हर्फ कितने हैं? एक मिनट, तीन साकिन, अलिफ और वो है ना, तो अलिफ और ते, तो ज़म्मा दे दीजिए, उसको खरेजा। ठीक है ना, लिख लिया? बस यहाँ पे इस तरीके से एक नुक्ता लिख लेना ताकि याद रहे। फेले मजहूल में ज़मीरें नाइब फाइल की होंगी, ठीक है ना? बस ये याद रखना, माजी मालूम में और माजी मजहूल में यही फर्क है कि माजी मालूम में जो 14 सीगों में ज़मीरें हैं वो फाइल की हैं, और इसमें जो ज़मीरें हैं वो, अगर फेले मजहूल में ज़मीरें जितने भी हैं, माजी में 14 ज़मीर सीगे थे ना, तो ज़मीरें थी ना, पहले सीगे में हुआ, दूसरे में अलिफ, तीसरे में वाव, चौथे में हिया, ये सब ज़मीरें वहां फाइल की थी, लेकिन फेले मजहूल में जो ज़मीरें हैं वो नाइब फाइल की होंगी। समझ में आई बात? जी आगा। माजी मजहूल बनाने का तरीका। अब बताया आपको क्या एक चीज फायदा निकला, नतीजा क्या निकला? सुलासी मुजर्रद में मालूम के कितने वजन थे? सुलासी मुजर्रद माजी मालूम के फ़अला, फ़अला, फ़अला 3 वजन थे ना, लेकिन सुलासी मुजर्रद का मजहूल का सिर्फ एक ही वजन है। आप भाई देखिए, माक़बल आखिर को जब कसरा उससे पहले ज़म्मा दे देंगे तो एक ही वजन बचा, नहीं बचा? पहले सुलासी मुजर्रद का जो माजी मजहूल है वो इसी वजन पे आएगा, फकत यही वजन, चाहे कोई सा भी मस्दर हो उसका मजहूल माजी का यही आएगा है। फ़ोएला, ज़ोरेबा, नोसेरा, कोतेला, ज़ोहेबा, फ़ोतेहा, जो ज़ोहेबा भी है, फ़ोतेहा जो भी है, ठीक है, इसी वजन पे आना है। इसका मतलब ये हुआ पहले सुलासी मुजर्रद का माजी मालूम के तो 3 वजन है, लेकिन मजहूल का एक ही वजन है। ऐसे ही मुज़ारे मालूम के भी 3 वजन थे ना, यफ़अलो, 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 लेकिन मजहूल का उसका भी एक ही है, युफ़अलो। वो बाद में बताते हैं, फिलहाल ही माजी मालूम का निकलिए। मिटा दूं?
जी आप मिटागा लास्ट वाली लाइन लाइन नहीं मत जी मिटाना जी 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 जी। मिटा दूं? जी आगा मुदारे मजहूर बनाने का कायदा भी लिख लीजिए। ये माजी मजहूर बनाने से भी आसान है, ये माजी मजहूर बनाने से भी आसान है। मा कबल आखिर पे अगर फतह नहीं है तो फतह दे दीजिए और अलामत मुदारे को बस जम्मा देना है। अगर जम्मा नहीं है तो बाज़ जगह अलामत मुदारे पे जम्मा होता ही है ऑलरेडी, तो वो देने की जरूरत नहीं, बस मा कबल आखिर को फतह कर देना। बाज़ फेल आप ऐसे देखेंगे कि जिनको मा कबल आखिर ऑलरेडी फतह है तो उस पर छेड़ने की जरूरत ही नहीं, फतह रहने दीजिए, तो अलामत मुदारे को जम्मा दे दीजिए। बास फेल ऐसे हैं जिसके अलामत मुदारे पे जम्मा है तो मा कबल आखिर को फतह दे दीजिए। बस ये करना ही है कि अलामत मुदारे पे जम्मा होना चाहिए, मा कबल आखिर को फतह होना चाहिए, मुदारे मजहूर बन जाएगा। देखिए आप, और ये बात याद रखना, माजी मजहूल माजी मालूम से बनता है, मुदारे मालूम मुदारे मजहूल से बनता है, और अम्र मजहूल मुदारे मजहूल से, अम्र मालूम से नहीं। मुदारे मजहूल अम्र मजहूल भी और मुदारे मजहूल भी, अम्रे नहीं, अम्र मालूम से बनता है अम्र मजहूल, और अम्र मुदारे मजहूल, और मुदारे मजहूल से बनता है अम्र मजहूल। यस रेगो करिए। मा कबल आखिर को क्या करना है, बोलिए। मा कबल आखिर फतह देना है ना, को फतह देना। क्या है मा कबल आखिर? रे, फतह दे दीजिए। और अलामत मुदारे को यस रेजो। बोलिए, मा कबल आखिर क्या है? रे, फतह दे दीजिए, अलामत मुदारे को जम्मा दे दीजिए। क्या बना? युस्तखरजो। युस्तखरजो बन गया मुदारे मजहूल। कितना आसान है, बस अलामत मुदारे को जम्मा कर देना है और मा कबल आखिर को फतह कर देना है। ठीक है। मुदारे अब बाबे फाल का मुदारे क्या है? युक्रेमो। युक्रेमो तो यहाँ पर अलामत मुदारे में ऑलरेडी जम्मा है तो मा कबल आखिर को उसे तो जम्मा रहने दीजिए, मा कबल आखिर को बस फतह दे दीजिए, हो जाएगा युक्रमो। अगर फर्स्ट वाला यूजर बात है जी यूजरेबल। हाँ तो क्यों आप ये मत कहिए कि क्यों आया है, यूं कहिए कि आपने गलत लिखा है। आप कॉन्फिडेंस में रहिए, गलती तो गलती कहिए, कंफ्यूज मत होइए। मैंने गलत किया है तो आप कहिए आपने गलत लिखा है, और अगर आपको यकीनी याद है तो आपको जरूर कहेंगे कि आपने गलत लिखा है। इसे यकीनी याद करिए। मुजारे मरफू होता है, यानी आखिर में फासिलों में जम्मा होता है, तो आप कहिए कि आपने जी यजरेबो है ना, यजरेबो से युजरबो, मा कबल आखिर को फतह दिया ना और अलामत मुदारे को जम्मा, तो युजरबो। जी जी। यस्तखरजो था मुदारे मालूम, यस्तखरजो हो जाएगा युस्तखरजो। मुदारे मालूम युक्रेमो था ना, युक्रामो हो जाएगा। इसमें भी वही नुक्ता है जो वहां पे लिखवाया मैंने। क्या नुक्ता लिखवाया वहां? माजी मालूम की जमीरें फाइल की थी, माजी मजहूल में नाइब फाइल की। ऐसे मुदारे में मुदारे मालूम की जमीरें जो थी फाइल की थी, यहाँ जो जमीरें होंगी वो नाइब फाइल की होंगी। और एक नुक्ता और लिख लेना कि माजी मजहूल माजी मालूम से बनता है, मुदारे मजहूल मुदारे मालूम से बनता है, अम्र मजहूल मुदारे मजहूल से बनता है। लिख लिया? मिटा दूं? याद रहेगा आपको मुदारे मजहूल बनाने का कायदा, कंफ्यूज तो नहीं होगा। माजी मजहूल मुदारे मजहूल में, माजी मजहूल में मा कबल आखिर को कसरा देना है, मुदारे मजहूल में मा कबल आखिर को फतह देना है। माजी मजहूल में मा कबल आखिर से पहले वाले सब हरफ को जम्मा देना है, यहाँ सबको नहीं, फकत अलामत मुदारे को जम्मा देना है। याद रहेगा?
جی آقا جی यहाँ सिर्फ एक हर्फ को जम्मा देना है अलामत मुजारे को, और एक हर्फ को फतह देना है माक़ाबिल आखिर को. एक हर्फ से ताल्लुक है यहाँ पे माक़ाबिल आखिर और अलामत मुजारे, बस 2 हर्फ. लेकिन माजी मजहूल में माक़ाबिल आखिर को कसरा, और उससे पहले चाहे एक हर्फ मुतहर्रिक हो चाहे 2 हर्फ मुतहर्रिक हो, जितने भी मुतहर्रिक हर्फ है सबको जम्मा देना है. ठीक है. जी आका. करामा करोमा है या करमा, वो सुलासी मुजर्रद है करोमा. और आका उसका मुजारे यकरोमो, ये जो युक्रेमो है ना, यकरोमो. वो अक्रमा युक्रेमो है. ये क्या है? बाबे इफाल अक्रमा जी, अक्रमा युक्रेमो है. अक्रमा युक्रेमो, ये बाबे फाल इकराम. अक्रमा युक्रेमो इकराम बाबे फाल है ये. अब देखिए माजी में कितने हर्फ हैं इसके, कितने हर्फ हैं माजी में? 4. याद है आपको, मैंने बताया था वो मुजारे जिसके माजी में 4 हर्फ हों उसकी अलामत मुजारे में जम्मा होता है. आप ये देखिए सर्रफा माजी है तो एक रेत स्वाद रे पे इसलिए एक रेत ज्यादा है तो अलामत मुजारे पे इसके भी जम्मा होगा. क्यों? क्योंकि 4 हर्फ है. स्वाद रे रे पे 2 रे हैं यहाँ, और एक स्वाद एक 4 हर्फ होगा, इसलिए इसकी अलामत मुजारे पे जम्मा होगा. युसर्रिफु. ये आगे पढ़ेंगे, अभी सुलासी मुजर्रद की बात चल रही है ना, इसलिए सुलासी मजीद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा. लिख लिया आप लोगों ने या नहीं? हेलो. जी आका जी. अब मसला एक बाब है, मैं आपसे माजी मुजारे बनवाना ना, मुजारे मजहूल जी, मुजारे मजहूल बनाना है इसका. ये है बाबे मुफाला से, बाबे मुफाला का मुजारे है युकातिलु. मजहूल बनाइए, कौन बनाएगा? मजहूल ये मजहूल है मालूम है? पहले तो ये बताइए, ये मालूम है मजहूल है? नहीं आका मालूम है ये. कैसे पता मालूम है? माक़ाबिल आखिर पता नहीं है, कसरा है, इससे पता लग रहा है कि मालूम है. मजहूल बनाना है तो माक़ाबिल आखिर को फतह देना है, अलामत मुजारे को जम्मा देना है. यहाँ पे ऑलरेडी अलामत मुजारे पे जम्मा है, लिहाजा कुछ करने की जरूरत नहीं. युकातलु. समझ में आया? कनीस फातिमा, सकीना, सबीका, किसा, सैयदा गबरानी में मजहूल बनाने का तरीका आसान है. मिटा या गर्दान लिखूं पहले, या पहले मुजारे अम्र भी बना दूं, तो फिर इसी से काटा पीटी करके बन जाएगा. पहले अम्रे मजहूल बनाने का तरीका, या मिटा दूं तो बिल्कुल ही अलग है बिल्कुल. फिलहाल मुजारे मजहूल की अब गर्दान देखिए. इन्होंने क्या कहा? माक़ाबिल आखिर को फतह देना और अलामत मुजारे को जम्मा देनी. और क्योंकि हमारी बात अभी सुलासी मुजर्रद की चल रही है ना, इसमें सुलासी मुजर्रद क्या है? यज रे बो. इसे मजहूल बनाना, माक़ाबिल आखिर को फतह देना है और अलामत मुजारे को जम्मा. गर्दान करिए. गर्दान वही सेम टू सेम 14 सीगे, वही सारी ज़मीरें, बस ज़मीरों का नाम बदल जाएगा. वो ज़मीर फाइल की थी, यहाँ पे यज़रिबु में हुआ था, फाइल था. युज़रबा में हुआ है लेकिन वो नाइब फाइल है. गर्दान वही है, युज़रबु, युज़रबाने. अलामत मुजारे वही की वही बढ़ेगी, जो वहां बढ़ी हुई थी वही बढ़ेगी. ज़मीरें वो की वही रहेगी, फकत नाम बदलेगा, एराब वही रहेगा. ज़म्मार नून. युज़रबु, युज़रबाने, युज़रबूना, तुज़रबु, तुज़रबाने, युज़रबना, तुज़रबु. अलामत मुजारे पे ज़म्मा, इस पे फतह रहना चाहिए, बाकी सेम है. तुज़रबु, तुज़रबाने, तुज़रबूना, तुज़रबीना, तुज़रबाने, तुज़रबना, तुज़रबु, तुज़रबु. हाँ, यज़रिबु के क्या माना थे? मारता है या मारेगा, वो एक मार. मारने वाला मालूम है, कौन मार रहेगा? वो एक मर्द मारेगा. लेकिन युज़रबु मारा जाता है या मारा जाएगा, वो एक मर्द. तो वो मर्द तो मारा जाएगा, कौन मारेगा? किसने मारा जिक्र नहीं है. मारा जाता है या मारा जाएगा, वो एक मर्द. ठीक है, समझ में आई? गर्दान में क्या लिखूं, इसे पूरी आपको आती है. अब आइए फेले अम्रे मजहूल. फेले अम्रे मजहूल बनाने का फायदा क्या है? मुजारे मजहूल के शुरू में
लाम अम्र मकसूर बढ़ा देंगे और आखिर से अलामत रफ़ को खत्म कर देंगे। कोई पॉइंट समझ में आया इसमें आपको या नहीं? किसी को कोई पॉइंट समझ में आया? हेलो जी। इतनी बात से आपको कोई पॉइंट समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? किसी को कोई सवाल पहले लाम आगा एक तो मुजारे मजहूर से बनेगा अम्र। नहीं, इस और आखिर में दूसरा कोई सवाल इसको देख के इतनी बात पढ़ के कोई सवाल ज़हन में नहीं आया? मुदारे मजहूर के शुरू में लाम अम्र मकसूर बढ़ा देना, आखिर से अलामत रफ़ को खत्म कर देंगे। कोई सवाल ज़हन में आया? मुजारे अलामत मुजारे अमरे हाजिर का कैसे करेंगे? हाँ, किसने कहा ये अम्र हाजिर का क्या करेंगे? हमने सैयदा गौरानी। सैयदा गौरानी। अब मैं यही कहना चाह रहा था कि शायद ये सवाल आप शायद नहीं यकीनन ये आपके जहनों में सवाल आना चाहिए था कि जब अम्र मालूम बना रहे थे तो दो तरह बताया था ना, अम्र बिलाम अम्र बिसीगा। यहाँ पे आपने लाम वाला तो बता दिया, बाकी हाजिर का क्या करें? वो तो क्या ये पॉइंट आपको आना चाहिए था जहन में, क्योंकि जब आप पढ़ चुके हैं अम्र मालूम बनाने का तरीके दो हैं, एक लाम के जरिए से बनता है, एक सीगे के जरिए से। मुदारे का 8 सीगों से और 2 मुतकल्लिम के गायब के 6 सीगे, 2 मुतकल्लिम के सीगे ऐसे बनते हैं और हाजिर के अलग तरीके से बनते हैं। तो मजहूल में आकर आपने इतनी सी बात लिखवाई, बाकी का क्या? बाकी का यही है कि अम्र मजहूल 14 के 14 से है, ऐसे ही बनता है। 14 के 14 से, इसमें हाजिर गायब कुछ नहीं है, बस सारे 14 के 14 सीगों में अम्र मुदारे मजहूल के लाम बढ़ा देना है, आखिर को जज्म दे देना है। लेयुज़रब, लेयुज़रबा, लेयुज़रबू, लेतुज़रब, लेतुज़रबा, लेयुज़रबना, लेतुज़रब। यहाँ पे इज़रब नहीं कहेंगे, लेतुज़रब, लेतुज़रबा, लेतुज़रबू, लेतुज़रबी, लेतुज़रबा, लेतुज़रबना, लेतुज़रब, लेतुज़रब। पॉइंट क्या समझ में आया? अम्र मजहूल में अम्र बिसीगा नहीं होता, सब के सब अम्र बिलाम है। जो आते हैं किसान ऐसे रहे जी, हाजिर में आते हैं रहेगा, आते तो रहेगा ही, आतन वतन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुदारे मजहूल की गर्दान लिख देनी है 14 सीगे और लाम बढ़ा देना, आखिर को अलामत रफ़ काट देनी है, बाकी कुछ नहीं। हाजिर वाजिर कुछ नहीं है इसमें कि हम हस कीजिए अलामत मुदारे और हमज़ा लाइए और ये करिए वो करिए, इसमें वाला अम्र बिसीगा नहीं होता। लिखो जैसे मुदारे मजहूल की गर्दान लिखी ना भी आपने, क्या लिखी? युज़रबो, युज़रबाने, युज़रबुना, तुज़रबो, तुज़रबाने, युज़रबना। लिखिए तुज़रबुना। ये मैंने 2 सीगे क्यों लिखे? ये मैंने 2 सीगे क्यों लिखे? ताकि इसमें नून राबी के बारे में बता सके और जम्मे के बारे में। एक और वजह है, दूसरी वजह बताओ। एक वजह जो पता चल जाएगा तो बाकी के सब भी पता चल जाएगा। क्या चीज? हाजिर का भी इसमें ही हो जाएगा। आसान। अगर मैं यहाँ पे तुज़रबाने लिख देता तो आप कहते 5वां सीगा है, शक हो जाता कि 5वां सीगा है। मैंने इसलिए जमा का लिखा तो यकीन हो जाए कि हाजिर ही का है, और हाजिर में भी ऐसे ही बनना है, कोई सीगा अलग से नहीं बनना है। देखिए ये दो वजह से मैंने ये 2 मिसालें लाई हैं। एक तो इस वजह से कि मैं बता सकूं कि अलामत तरफ जम्मा भी होता है, नून भी, वो दोनों काट दिए जाएंगे। दूसरी वजह ये तुज़रबुना मैं इसलिए लाया हूं ताकि बता सकूं कि हाजिर का सीगा है, हाजिर के सीगे में अम्र मालूम की तरह अलग से हमज़ा हमज़ा लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनना है। 14 के 14 मजहूल के सीगों से ऐसे ही बनना है अम्र बिलाम। नुक्ता यही लिख लीजिएगा आप यहाँ पे ऐसे करके, अम्र मजहूल में सब सीगे लाम से बनेंगे जी, लाम से बनेंगे, ठीक है। इसमें अम्र बेसीगा नहीं होता। अम्र बेसीगा यानी वही जो हमने बनाया था, अम्र बेसीगा नहीं होता। 14 के 14 मुदारे के सीगे लिखिए, उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो मुदारे मजहूल की गर्दान भी लिख लेंगे और लाम अम्र और आखिर से अलामत रफ़ काट के 14 के 14 में तो अम्र मजहूल तो एक
تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، آپ کے مضارع کی گردان بھی لکھی جائے گی اور امر مجہول کی بھی، دو کام ایک ساتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لکھیے یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو، مضارع مجہول کی گردان لکھ دی آپ نے، اس کی پریکٹس ہو گئی آپ کی۔ اب شروع میں لام لا کے آخر سے علامت رکھ، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لأضرب لنضرب، 14 سے 14 میں لام بڑھا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہلو جی جی مٹا دوں؟ جی جی ہاں سمجھ میں آئے تینوں قاعدے یا نہیں؟ ہو گئے ماضی مجہول، مضارع مجہول اور امر مجہول۔ اور اب بولے تھے یہ ٹائم ہو گیا آپ کا 5-6 منٹ ایکسٹرا، انشاءاللہ ان کو آپ دہرا کے آئیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔